Hello students, today we will discuss about the gluteus maximus and structures deep to it. Now this is somewhere you have the question in your university exam and this is very commonly asked question, and there are so many multiple choice questions which are based on the images, and also you have the questions in a separate segments. Okay, so we will discuss all these questions one by one. So whenever you are reading the gluteus maximus, हम इस gluteus maximus में सबसे पहले जब भी आप कोई भी शॉर्ट नोट लिखें, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड दैट वी ऑलवेज यूज द पॉइंट वाइज हेडिंग्स, एंड हेयर फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन. Now what is the introduction of this muscle? That this muscle is the largest muscle in the gluteal region and it is the most superficial muscle. What is the meaning of this superficial? That whenever you are doing the dissection in the gluteal region, after removing the fat and the skin, you are able to see a large big thick muscle and that is the gluteus maximus. ठीक है, so जब हम dissection में देखेंगे तो आपको स्किन के नीचे सबसे पहले जो मसल मिलने वाली है वो कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस. और इसके नाम में छुपा हुआ है मैक्सिमस, मींस कि ये इसका बल्क मैक्सिमम है. Whatever the muscles are present in the gluteal region, this muscle is having the maximum bulk. That is why it is known as gluteus maximus. Now the second thing is that this muscle actually covers the all structures which are present in the gluteal region. So it overlies the most of the other gluteal muscle. Now you know the gluteal muscles which are there. We have the gluteus medius, minimus. You have the other structures. Those are coming out from the greater and lesser sciatic foramen that we will discuss. Now when you will see the muscle, it is quadrangular in shape. ठीक है. So अगर आप इस मसल को देखते हो तो ये कुछ इस तरह से हमें नजर आएगी. ठीक है. So it is quadrangular in shape. Then this muscle slopes downward and laterally. Clear? So अगर ये midline point है तो ये किधर जा रही है? नीचे की तरफ और बाहर की तरफ, यानी downwards and laterally from the origin. Clear? So whenever you are writing the gluteus maximus muscle, whenever you have the short note in exam, you have to write down first 3-4 lines about the introduction of this muscle. Now what next is that इस मसल का ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, now in this diagram you can appreciate that this is the origin part and this is the insertion point. Now what is the direction? Direction is downward, यानी fibers नीचे की तरफ जा रहे हैं, and laterally. ठीक है. Apart from that, this is its upper border, this is the lower border. ठीक है, ये insertion part है. So ये कैसा shape हुआ? Quadrangular shape हुआ. ठीक है. और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट इज जस्ट आफ्टर डिसेक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ द स्किन. ठीक है. तो आपने स्किन को हटाया, स्किन को हटाने के बाद आपको इस तरह से ये एक बड़ी मसल नजर आ रही है, एंड दिस इज योर ग्लूटियस मैक्सिमस. ठीक है. नाउ व्हाट नेक्स्ट कम्स इज कि जब भी हम कोई मसल पढ़ते हैं, हमेशा सबसे पहले हम बात करते हैं उसके ओरिजिन की. ठीक है. सो यहां पे ग्लूटियस मैक्सिमस का जब आप ओरिजिन पढ़ रहे हैं तो आपको यहां पे ओरिजिन भी बहुत सारे एरिया से मिलेगा. ठीक है. क्योंकि इसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, इट इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मसल फाइबर, तो इसका जो ओरिजिन है वो भी बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है. ठीक है. तो यहां पे सबसे पहले क्या क्या नाम आपको याद रखने हैं? इट अराइजेस फ्रॉम इलियम, इट अराइजेस फ्रॉम इलियक क्रेस्ट, some part of the aponeurosis and the fascia, sacrum, coccyx and sacrotuberous ligament. ठीक है. इन एरियाज के स्पेसिफिकली कौन से पार्ट से ग्लूटियस मैक्सिमस अराइज होती है? ठीक है. तो जब आप इलियम बोन देखते हैं, व्हेन यू विल सी द हिप बोन में इलियम का जो हमारा ग्लूटियल सरफेस होता है, उस ग्लूटियल सरफेस को हम डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लूटियल लाइंस. तो वहां पे एक लाइन पढ़ते हो, दैट इज नोन एज पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन. व्हाट इज दैट? पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन. तो ये जो मसल है ये अराइज होती है बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन फ्रॉम द रफ एरिया ऑफ इलियम. ठीक है. दूसरा कि आप देखते हो इलियक क्रेस्ट. नाउ इलियक क्रेस्ट इज स्टार्ट्स फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन to the posterior superior iliac spine. इस iliac crest का जो posterior part है, now from that dorsal segment of the posterior part of the iliac crest, we have the origin of the fibers of gluteus maximus. Now the तीसरा origin है
ग्लूटियल एपोन्यूरोसिस से। ये ग्लूटियल एपोन्यूरोसिस एक्चुअली द फेशिया ऑफ थाई का पार्ट है। जब आप थाई फेशिया पढ़ते हैं, व्हेन यू विल सी द फेशिया, ये जो फेशिया है ये ऊपर की तरफ स्प्लिट होता है। कहां ऊपर की तरफ? नियर दिस क्रेस्ट, इलियक क्रेस्ट। तो जब आप इलियक क्रेस्ट को देखेंगे तो इलियक क्रेस्ट के पास आने के बाद ये फेशिया स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होके ये कवर करता है ग्लूटियस मैक्सिमस को और टेंसर फेशिया लाटा को, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये एक सिंगल लेयर बनाता है, दैट सिंगल लेयर इज नोन एज gluteal aponeurosis, ठीक है। So in nutshell you can also write that it arises from the fascia which is present over the gluteus maximus muscle, ठीक है। Then it arises from the part of the thoracolumbar fascia that I will explain in the next diagram. It also arises from the dorsal surface of sacrum bone, clear? Because when you will having the pelvis, जब आप pelvis की बात कर रहे हैं तो posterior part of the ilium is articulating with the sacrum, that is known as sacroiliac joint. So this muscle is arising from the adjacent areas of ilium as well as the sacrum, ठीक है। और but obviously दोनों का बाहर का एरिया, बाहर का मतलब dorsal area, clear? And some fibers also arises from the coccyx. Now there is a very thick ligament that is known as sacrotuberous ligament. Now this sacrotuberous ligament is also giving the origin of the gluteus maximus, but again on the posterior surface. Now you can appreciate all the bony landmarks in this diagram. देखिए इस डायग्राम में ये क्या है, दिस इज द पेल्विस, ठीक है। आप यहाँ पे सपोज मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊं, ठीक है, सो दिस इज योर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, सो हियर आई एम हैविंग द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये साइड में आपको दिख रहा है हिप जॉइंट, सो दिस इज माय हिप जॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड, क्लियर। नाउ दिस इज द हिप बोन, सो ये मेरा हिप बोन है। नाउ दिस पॉइंट इज योर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, दिस इज माय एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। नाउ if you will see this is your iliac crest, clear? Now this is the posterior superior iliac spine. Now we are seeing the origin of gluteus maximus. So first point which I told you is the area of the ilium behind the posterior gluteal line, ठीक है। So my dear friend, this is the posterior gluteal line. यहां पे हम posterior gluteal line पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया क्या हो गया, ओरिजिन पार्ट फॉर ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है। नाउ ये जो एरिया है, नाउ दिस इज द सैक्रम, सो दिस एडजेसेंट पार्ट ऑफ द सैक्रम, दैट इज अगेन द पोस्टीरियर पार्ट, एडजेसेंट पार्ट ऑफ द कॉक्सिस, एंड ये क्या बच गया, अब ये जो आप ब्लू कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज योर sacrotuberous ligament. So the fibers also arising from this sacrotuberous ligament, ठीक है। तो जब भी आप ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन पढ़ रहे हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज ऑलवेज अराइजिंग फ्रॉम द डॉर्सल और द पोस्टीरियर सरफेसेस, ठीक है। सो किसका पोस्टीरियर सरफेस हुआ, आपके इलियम का, ये पूरा ग्लूटियल सरफेस है, ठीक है। और किसका डॉर्सल सरफेस हुआ, सैक्रम का, किसका हुआ, कॉक्सिस का, एंड ये जो लिगामेंट है इस लिगामेंट के साथ, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज आई, दैट इज द थोरैकोलंबार फेशिया, ठीक है। हमने यहां पे ये चीज पढ़ी थी कि इट अराइजेस फ्रॉम द पोस्टीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलंबार फेशिया। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पे हम थोरैकोलंबार फेशिया देखते हैं, यहां इस तरह से थोरैकोलंबार फेशिया का ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। जब आप एब्डोमेन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि थोरैकोलंबार फेशिया बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बिकॉज इट इज giving origin to the muscle fibers in the posterior abdominal wall. इस थोरैकोलंबार फेशिया के पीछे की तरफ एक मसल है जो पैरेलल है इस वर्टिब्रल कॉलम के, एंड दैट इज नोन एज इरेक्टर स्पाइनी, ठीक है। तो अगर सपोज मैं इस थोरैकोलंबार फेशिया को यहां से इरेज कर देता हूं, तो यहां पे मुझे एक मसल मिलना चाहिए, और वो मसल क्या होगा, इरेक्टर स्पाइनी। उस इरेक्टर स्पाइनी के ऊपर मैं फिर से बनाता हूं थोरैकोलंबार फेशिया, ठीक है। इस थोरैकोलंबार फेशिया की पोस्टीरियर बॉर्डर
ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर का लोअर मार्जिन है ये क्या दे रहा है, ओरिजिन टू द फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, सो यहां पे ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि थोरैकोलंबार फेशिया एक्चुअली पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल में कंट्रीब्यूट करता है और उसका पोस्टीरियर लेयर भी ग्लूटियस मैक्सिमस के फाइबर्स को ओरिजिनेट करता है। ठीक है, नाउ इन नटशेल व्हेन यू विल सी द ग्लूटियस मैक्सिमस ओरिजिन, व्हाट आर द थिंग्स यू आर एबल टू अप्रिशिएट हियर कि ये इसका पूरा ओरिजिन कहलाया। ठीक है, यहां से ये पूरा क्या कहलाया, ओरिजिन। ठीक है, अब अगर हम इस ओरिजिन को वापस काउंट करें तो ये क्या है, दिस इज योर ग्लूटियल एपोन्यूरोसिस। ठीक है, सो आई टोल्ड यू दैट फाइबर्स आल्सो अराइजेस फ्रॉम ग्लूटियल एपोन्यूरोसिस। यहां पे ये सारा जितना भी आप ओरिजिन देख रहे हो, आप कहां से स्टार्ट होगे, आप स्टार्ट होगे डॉर्सल सरफेस ऑफ द इलियक क्रेस्ट, यू विल हैव द एडजेसेंट part of your ilium that is behind the posterior gluteal line, you have the posterior part or the dorsal surface of the sacrum जो यहां आएगा, और वहां पे फिर you will have the adjacent origin from sacrotuberous ligament। ठीक है, so यहां पे जब आप origin पढ़ें, so this is my sincere suggestion that please keep this thing in mind in sequence and please write down in the sequence। ठीक है, now we'll move to the next part and that is the insertion of gluteus maximus। ठीक है, gluteus maximus का insertion समझने के लिए आपको इस मसल को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस एंड लोअर पार्ट ऑफ द ग्लूटियस। लोअर पार्ट ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस के दो सेट्स ऑफ द फाइबर्स होते हैं, सुपरफिशियल ग्रुप ऑफ द फाइबर्स एंड डीप ग्रुप ऑफ द फाइबर्स। क्लियर? ये जो अपर फाइबर्स हैं, ये अपर फाइबर्स कितने परसेंट हैं, 50%, यानी हाफ हैं अपर फाइबर्स, हाफ हैं लोअर फाइबर्स। इस हाफ में से ये जो सुपरफिशियल फाइबर्स हैं ये हैं हाफ और ये हैं हाफ। ठीक है, सो अगर ये 50% फाइबर्स हैं, ठीक है, तो ये भी 50 है, 50 में से सुपरफिशियल एंड डीप। क्लियर? अब जब आप इंसर्शन पढ़ोगे तो आपको सुपरफिशियल फाइबर्स ऑफ लोअर हाफ एंड अपर हाफ का इंसर्शन कॉमन करना है, यानी कितना पोर्शन हो गया, 75%, यानी 3/4 ऑफ द मसल। सो इंसर्शन इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, 3/4 एंड 1/4। इंसर्शन को हम कितने पार्ट में पढ़ रहे हैं, दो पार्ट में, 3/4 पोर्शन एंड 1/4 पोर्शन। 3/4 पोर्शन ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस किस किस चीज को इंक्लूड कर रहा है, अपर पार्ट एंड सुपरफिशियल फाइबर्स ऑफ लोअर पार्ट। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन इंसर्ट होता है इलियोटिबियल बैंड और ट्रैक्ट में। नाउ दिस इज वेरी कॉमनली आस्क्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन योर एग्जाम कि इलियोटिबियल ट्रैक्ट में कौन कौन से मसल्स आके अटैच होते हैं। जनरली हम देखते हैं कि मसल्स बोन से अराइज होके बोन पे इंसर्ट होते हैं, लेकिन पूरी बॉडी में कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां मसल्स बोन पे जाके अटैच नहीं होती हैं। उसमें से एक एग्जांपल ये है। नाउ क्वेश्चन इज दैट नेम द मसल विच अटैच्ड और इंसर्ट इनटू द इलियोटिबियल ट्रैक्ट। आंसर इज ग्लूटियस मैक्सिमस। उसका कितना पार्ट, 3/4 पार्ट। ठीक है, रिमेनिंग 1/4 पार्ट इंसर्ट होता है फीमर पे। नाउ व्हेन यू विल सी द अपर पार्ट ऑफ द फीमर, वहां पे आपको एक रफ एरिया मिलता है दैट इज नोन एज ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। व्हाट इज दैट, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी। तो जब भी आप ग्लूटियस मैक्सिमस का इंसर्शन लिखें, यू हैव टू राइट डाउन द टू प्लेसेस, वन इज योर इलियोटिबियल ट्रैक्ट एंड सेकंड इज योर बोन, दैट इज द फीमर। क्लियर? नाउ व्हाट नेक्स्ट कम्स इज दैट इन दिस डायग्राम यू कैन अप्रिशिएट द इंसर्शन। ठीक है, ये जो आप बैंड देख रहे हो, ये जो बैंड है ये इलियोटिबियल ट्रैक्ट है। ये बैंड कहां होता है, ये होता है हमारे लैटरल साइड ऑफ थाई में। तो अगर आप लैटरल पार्ट ऑफ थाई में यू कैन फील दिस टाइट बैंड, एंड ये जो बैंड है, ये बैंड कहलाता है मॉडिफिकेशन ऑफ डीप फेशिया। इस डीप फेशिया में यू कैन सी दैट दिस इज द मसल एंड दिस मसल इज ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, सो यहां पे आप ग्लूटियस मैक्सिमस के दोनों इंसर्शन देख पा रहे हैं साइमल्टेनियसली। ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स इंसर्ट हो रहे हैं कहां पे, ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी पे। एंड ये फाइबर्स क्या हैं, दीज आर द डीप फाइबर्स ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द ग्लूटियस
मैक्सिमस मसल। यहां पे आप इलियोटिबियल बैंड के अंदर ये फाइबर्स को इंसर्ट होते हुए देख रहे हैं, एंड दीज आर हैविंग द टू सेट्स ऑफ द फाइबर्स, सुपरफिशियल फाइबर्स और यू कैन से द upper fibers and the superficial fibers of the lower part. Clear? So this is your insertion of gluteus maximus. Now what next comes is the nerve supply. Now the gluteus maximus supplied by the inferior gluteal nerve. Inferior gluteal nerve which is having the root value of L5S1S2. ठीक है, ये जो L5S1S2 है ये क्या है? These are the ventral rami. These are the ventral rami. Clear? Now what is the action? देखिए जब भी हम कोई भी मसल पे क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं तो हम हमेशा चार चीज लिखते हैं: ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड बट ऑब्वियसली वी वांट टू फाइंड आउट द एक्शन ऑफ दैट मसल। यहां पे एक्शन क्या है? दिस इज ए चीफ एक्सटेंसर ऑफ हिप जॉइंट। नाउ दिस इज अगेन the question of your viva as well as multiple choice question. जब भी आपके पास gluteus maximus पे क्वेश्चन होता है या vice versa you have the movements of the hip joint, you have this question which is the chief extensor at hip joint. ठीक है, the answer is gluteus maximus. Gluteus maximus का एक और एक्शन है, that is the paradoxical action. Paradoxical action का मतलब ये हुआ कि जनरली हम ये बोलते हैं कि ओरिजिन और इंसर्शन की डेफिनेशन पे अगर आप जाओगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन? ओरिजिन मतलब वो पॉइंट जो मूवमेंट के टाइम फिक्स रहता है ना, मसल का वो अटैचमेंट जो मूवमेंट के टाइम फिक्स रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं बाइसेप्स की, तो बाइसेप्स अराइज हो रहा है यहां पे, ठीक है, और इंसर्ट हो रहा है कहां पे? रेडियस पे। तो जब आप मूव कर रहे हो तो ओरिजिन तो फिक्स है, मूव क्या हो रहा है? रेडियस। ठीक है, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग द फ्लेक्शन। सो ओरिजिन हमेशा वो पॉइंट हम कंसीडर करते हैं जो फिक्स रहता है, और इंसर्शन वो पॉइंट होता है जो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम मूव करता है। ठीक है, यहां पे हमने वर्ड यूज लिया पैराडॉक्सिकल एक्शन। पैराडॉक्सिकल एक्शन मींस इन सम मसल्स वी हैव द इंटरचेंजेबल टर्म, we can interchange these term because the gluteus maximus is a anti-gravity muscle. It is acting against the gravity. ठीक है, अब ये पैराडॉक्सिकल एक्शन कब देखने को मिलता है? देखिए जब आप खड़े हुए हो, when you will have the standing position, so from standing जब आप बैठने की कोशिश करते हैं, when we are trying or we are having the act of sitting from standing, तो जब आप खड़े हुए और जब आप बैठने की कोशिश कर रहे हो तो यहां पे जो फ्लेक्शन होता है, when you will have the flexion at the thigh, that flexion is controlled or regulated by this paradoxical action of gluteus maximus, because gluteus maximus extensor है। ठीक है, तो whenever you have, this is your gluteal region, now whenever you have the flexion here, now this muscle is contracting and this contraction is actually regulating this flexion taking place anteriorly. ठीक है, it is also a lateral rotator because it depends upon the direction of the fibers, and it also maintain the extended position of the knee joint. अब ये knee joint पे काम कैसे करेगी? ये तो सिर्फ hip joint पे पढ़ रहे हैं हम, but action में knee joint पे लिख रहे हैं because of the iliotibial tract. अगर आप iliotibial tract को देखेंगे तो you will realize कि iliotibial tract हमारा knee joint cross करता है. It is crossing the knee joint and it is reaching here. It is known as Gerdy's tubercle of the tibia. So because of this attachment in the lower part, this gluteus maximus is able to act on the knee joint, और ये क्या करती है? It maintain the extended position of knee joint through this iliotibial tract. ठीक है, so this is again the question of your exam, that iliotibial tract के ऊपर जो आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट है ग्लूटियस मैक्सिमस का, वो क्यों हो पाता है? ठीक है, सो इन नटशेल व्हेन यू आर रीडिंग द मसल ग्लूटियस मैक्सिमस, ठीक है, अगर मेरे पास ग्लूटियस मैक्सिमस पे शॉर्ट नोट आ गया तो मैं क्या क्या लिखूंगा? सो व्हाट आई एम राइटिंग, पहली चीज ओरिजिन, दूसरी चीज इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन। ठीक है, हमेशा हम ये चार चीजें लिखते हैं,
लेकिन ग्लूटियस मैक्सिमस के केस में यहां पे आपका शॉर्ट नोट पूरा नहीं होता. स्टिल देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू हैव टू राइट. एंड व्हाट इज दैट? स्ट्रक्चर्स विच लाइज डीप टू दिस मसल. बिना इस पॉइंट को लिखे आपका ये आंसर पूरा नहीं होगा. So my dear friend, this is my sincere advice कि whenever you are writing the short note on gluteus maximus, please write down this point: structures covered by the gluteus maximus or lies deep to the gluteus maximus. ठीक है? So now we will see the structures which lies deep to the gluteus maximus. So now we will see the structures deep to the gluteus maximus. उसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक्स समझेंगे. क्या बेसिक्स हैं? कि जब भी हम कोई भी स्ट्रक्चर को लोअर लिम्ब में एंट्री देखेंगे, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द एंट्री ऑफ द स्ट्रक्चर इन लोअर लिम्ब, हम ये देखेंगे कि लोअर लिम्ब में स्ट्रक्चर 90% स्ट्रक्चर जो है वो आगे से पीछे गए हैं. आगे से पीछे मतलब कि ये क्या है? दिस इज योर पेल्विस, पेल्विक कैविटी. ठीक है? इस पेल्विक कैविटी के अंदर जो भी स्ट्रक्चर हैं जो हम यहां इस एरिया में देखेंगे, चाहे वो नर्व है, चाहे वेसल्स है, ठीक है, वो पीछे की तरफ कैसे जाते हैं? दे आर गोइंग थ्रू द स्पेस विच आर नोन एज ग्रेटर शियाटिक एंड लेसर शियाटिक फोरामेन. ठीक है? अब ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये स्ट्रक्चर पोस्टीरियरली कैसे गए, उसको जाने के बाद क्या हुआ, वो देखने के लिए हमें ग्लूटियस मैक्सिमस का डिसेक्शन करके उसको हटाना पड़ता है. ठीक है? अगर आप ग्लूटियस मैक्सिमस को डिसेक्ट नहीं करेंगे तो यहां पे जो स्ट्रक्चर्स एग्जिट हो रहे हैं उनका ग्लूटियल रीजन में एंट्री नहीं देख पाते. ठीक है? सो अगर आप इस जगह पे ये जो एरोज देख रहे हैं, ये एरो क्या शो कर रहा है? दिस एरो इज शोइंग दैट द स्ट्रक्चर आर गोइंग पोस्टीरियरली. ठीक है? ये वाला गैप क्या है? व्हाट इज दिस गैप? Now this gap is your greater sciatic foramen. यहां पे ये जो greater sciatic foramen है, इस greater sciatic foramen से एक बड़ा मसल निकलता है जो पीछे जा रहा है, that is known as pyriformis. ठीक है? बट अगेन बात ये है कि यहां से जो भी स्ट्रक्चर निकलेंगे वो पीछे ग्लूटियल रीजन में जाएंगे, और ग्लूटियल रीजन में हम बहुत बड़ा मसल देख रहे हैं, दैट इज ग्लूटियस मैक्सिमस. ठीक है? इसके अलावा जो भी स्ट्रक्चर्स पीछे की तरफ ग्लूटियल रीजन में हैं, वो कुछ बोन्स हैं, कुछ नर्व्स हैं, कुछ वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, एनास्टोमोसिस हैं. ठीक है? सो वी विल सी देम वन बाय वन. सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स लाइज डीप? आपके पास सबसे पहले दिमाग में होना चाहिए कि ग्लूटियस मैक्सिमस के डीप में है क्या क्या. तो उसके नीचे बोन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, बर्सा है, मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं एंड कुछ एनास्टोमोसिस है. ठीक है? सो दिस इज द लिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विच आर डीप और यू कैन से लाइज अंडर द ग्लूटियस मैक्सिमस. सो फर्स्ट विल सी व्हाट आर द बोन्स एंड द लिगामेंट्स. कौन कौन सी बोन्स हैं और द लिगामेंट हैं जो ग्लूटियस मैक्सिमस से ढके हुए हैं. तो अभी हमने इस वाले पार्ट को आगे से देखा है ना. सो आगे से देखा तो हमने देखा कि ये वाला जो एंट्री है, इस एंट्री के थ्रू ग्लूटियल रीजन में स्ट्रक्चर कहां से आ रहे हैं? पेल्विस से आ रहे हैं. सो पेल्विक कैविटी में जो भी चीज अराइज होके पीछे जा रही है और ग्लूटियल रीजन में आ रही है, वो कौन सा गेट यूज लेती है? वो गेट यूज लेती है ग्रेटर शियाटिक फोरामेन. ये ग्रेटर शियाटिक फोरामेन किससे कवर है? ग्लूटियस मैक्सिमस से. ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन हमने यहां देखा है ना, ऐसे ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन देखा. ठीक है? सो ये ऐसे जा रही है ग्लूटियस मैक्सिमस. क्लियर? और फाइबर्स किधर जा रहे हैं? डाउनवर्ड एंड लैटरली. ये कुछ इस तरह से जा रही है. अब इस मसल के नीचे अगर आप बोन्स को देखने गए तो कौन सी बोन्स हैं जो हमें नजर आ रही हैं? पहला ये वाला बोन. ये कौन सा बोन है? इलियम. ये वाला बोन कौन सा बोन है? सैक्रम. ये वाला बोन कौन सा बोन है? कॉक्सीजियस. ये वाला एरिया ये क्या है? अपर पार्ट ऑफ द फीमर वेयर यू विल हैव द ट्रोकेंटर. ठीक है? सो ये जो एरियाज हैं, ये जो बोनी एरियाज हैं, ये किससे कवर हैं? दे आर कवर्ड बाय द ग्लूटियस मैक्सिमस. और ये जो स्टियल ट्यूबरोसिटी है, ये स्टियल ट्यूबरोसिटी भी किससे कवर रहती है? लोअर फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस से. ठीक है?
ये तो हो गई बोन्स। अब लिगामेंट्स कौन कौन से हैं? यहां पे जब आप लिगामेंट्स को चेक करेंगे तो एक तो ये इंपॉर्टेंट लिगामेंट है। नाउ ये जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट कहलाता है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। व्हाट इज दैट? सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ट्यूबरस मतलब ट्यूबरोसिटी, और ये सैक्रम से ट्यूबरोसिटी को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए क्या कहलाया? सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लिगामेंट है, ये वाला। Now this small horizontal ligament is known as sacrospinous ligament. What is that? Sacrospinous ligament. So you have to keep this thing in mind that there are two major ligament which are, you can say, covered by the gluteus maximus. ठीक है? इसके अलावा ये जो आपका जॉइंट बना, ये जॉइंट का नाम क्या है? This joint is known as sacroiliac joint. Sacro यानी सैक्रम और इलियो मतलब इलियम, दोनों के बीच का ये जॉइंट कहलाया सैक्रोइलियक जॉइंट। इसको जो पोस्टीरियर सैक्रोइलियक लिगामेंट कवर करता है वो भी किससे कवर है? ग्लूटियस मैक्सिमस से कवर है। ठीक है? सो दीज आर द बोनी लैंडमार्क्स एंड द लिगामेंट्स, दोज आर कवर्ड बाय द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज द बर्सा। बर्सा क्या चीज होती है? बर्सा वो चीज है जो हमारे स्ट्रक्चर्स के बीच में फ्रिक्शन को रोकेगी। ठीक है? अभी हमने देखा इस प्रीवियस डायग्राम में कि यहां पे बहुत सारे लिगामेंट्स हैं, बहुत सारी बोन्स हैं, और इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर है मसल, इनके ऊपर यहां पे ये मसल है। ठीक है? तो अगर मूवमेंट होगा, whenever the movement will take place, there are high chances of the friction. फ्रिक्शन किस किस के बीच में होगा? जो प्रोमिनेंट एरियाज हैं बोन के या मसल्स के, दूसरी मसल्स के और इस ग्लूटियस मैक्सिमस के बीच। तो उस फ्रिक्शन को रोकने के लिए वी हैव द बर्सा। सो पहला है ट्रोकेंट्रिक बर्सा, दूसरा है ग्लूटियोफीमोरल बर्सा, और तीसरा है इस्चियल बर्सा। ये जो ट्रोकेंट्रिक बर्सा है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और हमारी मसल के बीच में होता है। तो ग्रेटर ट्रोकेंटर यहां है, सो इस ट्रोकेंटर और मसल के बीच में यू हैव द बर्सा एंड दैट इज नोन एज ट्रोकेंट्रिक बर्सा। दूसरा जो बर्सा है दैट इज नोन एज ग्लूटियोफीमोरल बर्सा। ये ग्लूटियोफीमोरल बर्सा होता है वास्टस लैटरलिस के अपर एंड और ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के बीच में। तीसरा बर्सा है इस्चियल बर्सा। इस्चियल बर्सा ओकेजनली होता है और ये बर्सा इस्चियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर होता है। ठीक है? अगर आप यहां देखते हैं तो ये इस्चियल ट्यूबरोसिटी है। इस इस्चियल ट्यूबरोसिटी और मसल के बीच में हमारे पास जो बर्सा है दैट इज इस्चियल बर्सा। क्लियर? सो वी हैव सीन द ligaments, bones, bursa. Now what next comes is the muscles lies deep to the gluteus maximus. देखिए यहां पे आपको ये 5 इंपॉर्टेंट नाम है जो याद रखने हैं, which are showing the name of the muscles. पहला मसल other gluteus which are known as gluteus medius and minimus. Then the next is the piriformis. Piriformis is known as key muscle of gluteal region. It is known as key muscle of gluteal region. It is a multiple choice and fill in the blank question. Which is the key muscle of gluteal region? ठीक है? Then you will have a tricipital tendon. ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3। तो कौन कौन से 3 है? ऑब्चुरेटर इंटरनस, 3 में पहला कंपोनेंट है ऑब्चुरेटर इंटरनस, और इसमें दूसरा कंपोनेंट है सुपीरियर एंड इंफीरियर गैमिलस मसल, superior and inferior gemellus muscle. Then you will have the next muscle is quadratus femoris, and the last is the origin of hamstrings. Hamstrings कहां से अराइज होते हैं? ischial ट्यूबरोसिटी से। तो अगर ischial ट्यूबरोसिटी पहले से ही ग्लूटियस मैक्सिमस से कवर हो रही है तो बट ऑब्वियसली उनका जो ओरिजिन है, अपर पार्ट जो है, वो भी किससे कवर होगा? ग्लूटियस मैक्सिमस से। ठीक है? सो हियर यू कैन सी दैट ये जो एरिया है, इस एरिया में अगर आप यहां पे ग्लूटियस मैक्सिमस को चेक कर रहे हैं तो यहां पे आप वो सारे स्ट्रक्चर कवर कर पाएंगे जो इसके नीचे आप देखने वाले हैं। ठीक है? तो जब भी आप डिसेक्शन करेंगे, व्हेनेवर यू विल डू द डिसेक्शन, और अगर इसको मिड लाइन सेक्शन करके इसको दोनों साइड में रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको बाकी के सारे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं जो हम यहां स्टडी कर रहे हैं। ठीक है? सो इस डायग्राम में यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट कि ये जो मसल हैं, इन मसल्स में ये सबसे पहली मसल है, दिस इज ग्लूटियस मीडियस। देखिए ये जो ग्लूटियस मीडियस है, इस ग्लूटियस मीडियस के नीचे यू हैव द ग्लूटियस मिनिमस।
ठीक है। और इन दोनों के ऊपर यहां पे ये क्या था, ये आउटलाइन जो मैं बना रहा हूं, दिस इज द ओरिजिन ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस। तो अगर हम इसको ऐसे बनाएं ग्लूटियस मैक्सिमस को, तो आप देख पाएंगे कि ये ग्लूटियस मैक्सिमस इन सबको कवर कर रहा है, ठीक है। तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि ग्लूटियस मैक्सिमस जो है, इस ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे क्या होती है, मिनिमस, और मिनिमस के मीडियस, सॉरी, और मीडियस के नीचे होती है मिनिमस। इसके अलावा यहां पे आप ये देख पा रहे हैं कि एक छोटी सी मसल है, ये छोटी मसल क्या कहलाती है, दिस इज योर पायरिफॉर्मिस। नाउ दिस पायरिफॉर्मिस अराइजिंग एंटीरियरली फ्रॉम द वेंट्रल सरफेस ऑफ द सैक्रम। ये जो सैक्रम है इसके आगे से अराइज हो रही है, और इस फोरामेन का नाम क्या है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। इस ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से बाहर निकल के आ रही है, और इस ग्रेटर शियाटिक फोरामेन को ये दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि इसके अपर बॉर्डर पे गैप जनरेट हुआ, इसके लोअर बॉर्डर पे गैप जनरेट हुआ, ठीक है। सो पायरिफॉर्मिस this muscle is coming out from the greater sciatic foramen and it is dividing the greater sciatic foramen. You have the area above and you have the area below. Clear? Now उसके नीचे आपको दिख रही है ऑब्चुरेटर इंटर्नस, एंड ये जो ऑब्चुरेटर इंटर्नस है इसके साथ हमें दो छोटी मसल मिलती हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। और बीच में ये टेंडन जो है, ये टेंडन है ऑब्चुरेटर इंटर्नस का। तो ये तीनों कंबाइंडली क्या कहलाए, ट्राइसिपिटल, यानी तीन टेंडन्स का कॉमन नेम है। कौन कौन से, ऑब्चुरेटर इंटर्नस, सुपीरियर एंड इंफीरियर गैमिला है। और उसके नीचे हमें मिलती है एक क्वाड्रेंगुलर मसल एंड दैट इज नोन एज क्वाड्रेटस फीमोरिस। और ये सारे स्ट्रक्चर किससे कवर हैं, ये सारे स्ट्रक्चर कवर हैं ग्लूटियस मैक्सिमस से, ठीक है। सो दीज आर द मसल्स व्हिच लाइज डीप टू द ग्लूटियस मैक्सिमस. Now there are only three arteries which you will learn here. One is superior gluteal artery, another is inferior gluteal and internal pudendal artery. ठीक है, superior gluteal, inferior gluteal and internal pudendal, ये सारी की सारी अल्टीमेटली ब्रांचेज हैं इंटरनल ईलियक आर्टरी की, ठीक है। किसकी ब्रांच है, इंटरनल ईलियक आर्टरी की। ये इंटरनल ईलियक आर्टरी कहां है, इट इज अगेन इन द पेल्विस। कहां पे है, पेल्विस में। और पेल्विस से इस इंटरनल ईलियक आर्टरी के डिवीजन्स दे रहे हैं सुपीरियर, इंफीरियर एंड इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। इसका जो पोस्टीरियर डिवीजन है उससे आती है ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल ईलियक आर्टरी गिव द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर ग्लूटियल एंड इंफीरियर ग्लूटियल एंड इंटरनल पुडेंडल दे अराइजेस फ्रॉम एंटीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल ईलियक आर्टरी। इसको समझने के लिए हमें ये डायग्राम पे ध्यान देना है। Now when you will see this diagram, इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हो कि यहां पे ये है आपका ऑर्टा, ये ऑर्टा डिवाइड हो गया कॉमन ईलियक में, ठीक है। एक राइट में गई, एक लेफ्ट में गई। ये कॉमन ईलियक वापस डिवाइड हुई किसके अंदर, एक्सटर्नल ईलियक। एक्सटर्नल ईलियक कंटिन्यू हो गई फीमोरल आर्टरी, और ये हो गई आपकी इंटरनल ईलियक। ये जो इंटरनल ईलियक है, इस इंटरनल ईलियक का ये कहलाया पोस्टीरियर डिवीजन जो पीछे जा रहा है, ये एंटीरियर डिवीजन जो आगे आ रहा है। क्लियर? फिर से देखें कि कैसे ये बना। नाउ इफ यू विल सी हियर कि ये है आपकी एक्सटर्नल ईलियक जो कंटिन्यू कर रही है फीमोरल आर्टरी में, और ये है इंटरनल ईलियक जो अंदर ही रह गई। इस इंटरनल ईलियक में एक डिवीजन बना जो कहलाया एंटीरियर डिवीजन, और जो पीछे गया ये क्या कहलाया, पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। अब ये जो पोस्टीरियर डिवीजन है, इस पोस्टीरियर डिवीजन से एक आर्टरी निकल के पीछे गई एंड दिस इज नोन एज सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। सो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। और ये जो एंटीरियर डिवीजन है, इस एंटीरियर डिवीजन में से आपने देखा इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी इस सियाटिक फोरामेन के लोअर पार्ट में चली गई, ठीक है। तो यहां पे इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं, ये है ओरिजिन ऑफ पायरिफॉर्मिस, ई शेप ओरिजिन। किस पैटर्न में अराइज होती है ये, जब भी आप इसका ओरिजिन पढ़ते हैं इट इज ऑलवेज इन द शेप ऑफ ई, ठीक है। इस पायरिफॉर्मिस के ई शेप ओरिजिन के बाद ये आर्टरी चली गई एंड ये आर्टरी इसके अपर बॉर्डर पे गई और ये आर्टरी इसके लोअर बॉर्डर पे गई। जो आर्टरी इसके अपर बॉर्डर से पीछे जा रही है ये क्या कहलाई, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, और जो आर्टरी इसके लोअर बॉर्डर की तरफ गई
वो क्या कहलाई, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है, सो सुपीरियर मतलब अलोंग द सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर मतलब अलोंग द इंफीरियर बॉर्डर, और ये बॉर्डर किसकी है, पायरिफॉर्मिस मसल की। क्लियर। सो हेयर यू कैन सी दैट यहां पे ये जो आर्टरीज हैं, जैसे ये आप जा रही है सुपीरियर ग्लूटियल, ये जा रही है इंफीरियर ग्लूटियल। ठीक है, ये आर्टरीज पीछे जाने के बाद एनास्टोमोसिस करती हैं, और देर आर टू एनास्टोमोसिस विच वी विल लर्न हेयर। वन इज नोन एज ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस, अनदर इज नोन एज क्रूशिएट एनास्टोमोसिस। ठीक है, तो ये जो एनास्टोमोसिस पीछे की तरफ होते हैं, दे आर ऑल्सो कवर्ड बाय द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ठीक है, और ये जो एनास्टोमोसिस है, इन एनास्टोमोसिस में पार्ट लेने के लिए ये आर्टरीज कहां से जा रही है, आगे से, और ये आर्टरी आगे से किससे जा रही है, ये कौन सी आर्टरी है, इंटरनल इलियक। ये इंटरनल इलियक की दो ब्रांचेस हैं, ये एंटीरियर डिवीजन है, ये पोस्टीरियर डिवीजन है। क्लियर। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द इंटरनल branches of internal iliac which are actually contributing here in the gluteal region। ठीक है, सो ये आप यहां पे आप पीछे से इसको अगर देख रहे हैं तो यहां पे वापस हम पोस्टीरियरली आ गए। सो ये क्या है, दिस इज द आउटलाइन ऑफ योर ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। इस ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से बाहर क्या आ रहा है, ये पायरिफॉर्मिस। ठीक है, और पायरिफॉर्मिस के अपर बॉर्डर पे ये आर्टरी है, ये आर्टरी क्या कहलाई, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इसके लोअर बॉर्डर पे ये आर्टरी है, ये आर्टरी क्या कहलाई, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है, और ये एरिया, दिस एरिया इज फॉर द एनास्टोमोसिस, क्रूशिएट एनास्टोमोसिस एंड ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस, जिसमें यू कैन सी दैट या ये सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी पार्टिसिपेट कर रही है, ये इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, सो दिस इज what is about the blood vessels and anastomosis covered by the gluteus maximus। Clear? Now in this, again in this diagram also you can see that ये जो कट सेक्शन है, ये कट सेक्शन क्या है, this is the cut section of your gluteus maximus muscle। ठीक है, यहां पे ये मार्जिन जो दिख रहा है, ये ग्लूटियस मैक्सिमस का कट मार्जिन है। इसको काटने के बाद आपको नीचे दिखा पहले ग्लूटियस मीडियस। ठीक है, आपने इस मीडियस का भी ये कट मार्जिन देख रहे हो, इस मीडियस को काटा तो नीचे मिला ये मिनिमस। ठीक है, और यहां पे ये एक हॉरिजॉन्टल मसल नजर आएगा आपको डिसेक्शन में, ये हो गया पायरिफॉर्मिस। अब पायरिफॉर्मिस को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको दूसरे स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर की बॉर्डर पे आर्टरी, सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी, इसके लोअर बॉर्डर पे एक आर्टरी, दैट इज इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर while you are doing the dissection in gluteal region। Now we'll come to the nerves। Now ये जो nerves हैं, ये कितनी हैं? There are 7 nerves। जब भी आप structures पढ़ रहे हैं deep to the gluteus maximus, हम वहां पे 7 nerves पढ़ते हैं। ठीक है, so what are the name of nerves? Superior gluteal nerve, sciatic nerve, nerve to quadratus femoris, nerve to obturator internus, posterior cutaneous nerve of thigh, or it is also known as posterior femoral cutaneous nerve, then you will have pudendal nerve and inferior gluteal nerve। ठीक है, सो कितनी नर्व है टोटल? 7। सो सबसे पहले जो आपको याद रखना है कि जब भी आप डीप टू द ग्लूटियस मैक्सिमस नर्व्स को एलिब्रेट करेंगे, आपको कितने नाम याद रखने हैं? 7 नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब यहां पे इस डायग्राम में अगर आप इन नर्व्स को ट्रेस करें तो फिर से हम पहले किसको ट्रेस करेंगे? इस मसल को। ये मसल कौन सी हो गई हमारी? पायरिफॉर्मिस हो गई। ठीक है, ये पायरिफॉर्मिस ने क्या किया था? शियाटिक, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन के ऊपर और नीचे गैप क्रिएट किया था। ठीक है, अब इसका जो ऊपर के तरफ गैप है, उस गैप से ये नर्व बाहर आ रही है। ये नर्व चूंकि ऊपर से बाहर आई, अपर बॉर्डर से बाहर आई, तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। ठीक है, और इसी के अलोंग में एक चीज और बाहर आई थी, दैट इज सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। सो सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, these are the two structure which you will find along the upper border of pyriformis। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपने ग्लूटियस मैक्सिमस को कट किया, डिसेक्ट करने के बाद पायरिफॉर्मिस को आइडेंटिफाई किया, और इसके ऊपर के बॉर्डर पे आपको सिर्फ 2 ही स्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। व्हाट इज दैट? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ये देखिए कहां जा रही है? ये सुपीरियर ग्लूटियल नर्व 3 मसल्स को सप्लाई करती है। कितनी मसल्स को? 3 मसल को। कौन कौन सी? ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मिनिमस एंड टेंसर
फेशिया लाटा। ठीक है, अब हम आते हैं इंफीरियर पार्ट पे। नाउ ये जो इंफीरियर एरिया है इसमें आपको बाकी की नर्व मिलेंगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको एक मोटा थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। ये जो थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, दिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज sciatic nerve। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस sciatic nerve। इस sciatic nerve के साथ आपको nerve to quadratus femoris मिलती है। अब जो nerve to quadratus femoris है ये कई बार इस sciatic nerve के ऊपर या सुपरफिशियली मिलती है और कई बार इसके डीप में मिल सकती है। ठीक है, बट यस ये लैटरल साइड है ना, ये आपका फीमर है इधर और ये आपका मिड लाइन है। ठीक है, यहां पे अभी इधर का ग्लूटियल रीजन भी आएगा। तो अगर आप मीडियल से लैटरली जा रहे हैं, व्हेन यू आर ट्रेसिंग दिस, सो सबसे लैटरल में ये नर्व मिल रही है। सो सबसे लैटरल में या सबसे यू कैन से आउटसाइड कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है? दिस थिक कॉर्ड इज sciatic nerve। ठीक है, इस sciatic nerve के दो डिवीजन आप पढ़ते हो, टिबियल नर्व एंड यू हैव द कॉमन पेरोनियल नर्व। अगर ये sciatic nerve हाई डिवीजन दे रही है तो ये जो sciatic nerve का कॉमन पेरोनियल कंपोनेंट होता है वो कई बार हमें इस पायरिफॉर्मिस को पियर्स करते हुए भी नजर आता है और समटाइम्स वेरी रेयरली वो ऊपर से भी यहां से भी बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो sciatic nerve के अंदर दो कंपोनेंट हैं, कॉमन पेरोनियल एंड टिबियल। दोनों कंपोनेंट सिंगल नर्व बना के इसकी लोअर बॉर्डर से बाहर आते हैं, लेकिन अगर इनका डिवीजन हाई हो रहा है तो हम कौन सी नर्व का कंपोनेंट देखेंगे जो पियर्स करके आ रहा है? पेरोनियल कंपोनेंट। और अपर बॉर्डर से आ रहा है तो पेरोनियल कंपोनेंट। सो पेरोनियल कंपोनेंट का जो एग्जिट है वो वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, नाउ इसके अलावा और जो नर्व्स हैं जो आप इस डायग्राम में देखेंगे वो कौन कौन सी नर्व्स हैं? सो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। दिस इज द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि sciatic nerve सबसे लैटरली है। ठीक है, और जितने भी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो इसके अंदर की तरफ है। ठीक है, दिस इज द पोडेंडल नर्व विच इज द मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर हियर। दिस इज द मीडियल मोस्ट नर्व एंड दैट इज द पोडेंडल नर्व। ठीक है, सो जब भी आप नर्व्स पढ़ रहे हैं और इवन इफ यू आर डूइंग द डिसेक्शन यू हैव टू कीप दिस नेम इन योर माइंड। नाउ यहां पे इस डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो नर्व है ये अराइज कहां से हो रही है। सो अगेन द आंसर इज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट। तो ये आपका वेंट्रल सरफेस है और ये जो पेल्विक कैविटी है इसके अंदर यहां पे ये सैक्रल फोरामिना है। सो यहां पे यू कैन सी दैट दिस इज द सैक्रल प्लेक्सिस। ये सैक्रल प्लेक्सिस बाहर आ रहा है। इस सैक्रल प्लेक्सिस के बाहर आने के बाद नर्व्स बन रही हैं। ये नर्व्स पीछे जाएंगी। ठीक है, और पीछे जाके जो हमने अभी इस प्रीवियस डायग्राम में देखा कि ये यहां पे बाहर आ रही हैं। ठीक है, तो ये बाहर कहां से आई हैं? ये बाहर आई हैं sciatic foramen से। और बनी कहां है? ये बन रही है एंटीरियरली। दे आर फॉर्मिंग ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट। ठीक है, सो ये एक्चुअली हैं क्या? दीज ऑल आर वेंट्रल रेमाई। दीज ऑल आर वेंट्रल रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व। क्लियर? आप ये ना सोचें कि हम इन नर्व्स को डॉर्सल सरफेस पे देख रहे हैं देन दे शुड बी द डॉर्सल रेमाई। इट इज नॉट लाइक दैट। ये डॉर्सल सरफेस पे नहीं देख रहे हैं, वी आर एक्चुअली सीइंग देयर ओरिजिन एंड ओरिजिन इज ऑन द वेंट्रल साइड। ठीक है, सो दीज नर्व्स आर आल्सो फॉर्म बाय द वेंट्रल रेमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व और ये यहां से फिर इस फोरामेन से होते हुए पीछे चले जाएंगे। क्लियर? नाउ व्हाट इज द सीक्वेंस? नाउ ये जो सवाल है ये आपके लिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्पॉटिंग में आता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है। राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर इमर्जिंग फ्रॉम द पायरिफॉर्मिस अलोंग इट्स लोअर बॉर्डर। कौन सी बॉर्डर? लोअर बॉर्डर, क्योंकि अपर बॉर्डर पे तो सिर्फ दो स्ट्रक्चर हैं, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड आर्टरी, बट लोअर बॉर्डर है जहां पे हम सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। तो दिस इज द सीक्वेंस कि लैटरल टू मीडियल अगर हम आए यानी बाहर से अंदर की तरफ आए तो क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो अभी मैंने बताया सबसे बाहर कौन सा स्ट्रक्चर होता है? sciatic nerve। क्लियर? सो इट इज द थिकेस्ट स्ट्रक्चर विच यू विल फाइंड। तो अगर आप इस पायरिफॉर्मिस को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, और इस पायरिफॉर्मिस को ड्रॉ करने के बाद इसकी लोअर बॉर्डर पे यहां पे अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सबसे बाहर की तरफ जो नर्व इसके नीचे से निकल रही है वो कौन सी होगी? योर sciatic nerve। ठीक है, और यहां से
लैटरल से मीडियली जैसे जैसे आप डिसेक्शन करोगे, जैसे जैसे आप स्ट्रक्चर्स को हटाओगे, तो आपको सबसे अंदर मिलेंगे पोडेंडल वेसल्स एंड नर्व। ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन क्या कहलाया, इस्चियल स्पाइन। ये छोटा सा प्रोजेक्शन क्या कहलाया, इस्चियल स्पाइन, क्योंकि इसी के ऊपर क्या है, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन, और इसके नीचे क्या बनेगा, लेसर शियाटिक फोरामेन। ठीक है, तो ये जो इस्चियल स्पाइन है, इस इस्चियल स्पाइन पे 3 स्ट्रक्चर हैं जो राउंड बना के वापस अंदर चले जाएंगे। ऐसे बाहर आएंगे, वापस राउंड बनाएंगे, वापस अंदर चले जाएंगे, बाहर आएंगे, वापस राउंड करेंगे, अंदर चले जाएंगे। यानी वो ग्लूटियल रीजन में नजर तो आएंगे, लेकिन ग्लूटियल रीजन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है, वो सिर्फ आपको यहां से एग्जिट होते हुए नजर आते हैं और वापस वो एंटर हो जाते हैं। ठीक है, और वो कौन सी स्ट्रक्चर हैं, वो है ये लास्ट के 3 स्ट्रक्चर, नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटर्नस, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी एंड पोडेंडल नर्व। ये तीनों स्ट्रक्चर आपको यहां नजर आते हैं, बट दे री एंटर इनटू द पेल्विस, वो वापस से अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे सीक्वेंस क्या हुआ, शियाटिक नर्व, नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड नर्व, देन यू विल हैव द 3 स्ट्रक्चर। और ये जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, ये आपको इस्चियल स्पाइन के ऊपर मिलते हैं, और ये कवर किससे हैं, यहां पे सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होता है। तो जब आप डिसेक्शन करते हैं, व्हेन यू आर डूइंग द कैडेवरिक डिसेक्शन, आपको इस वाले सैक्रोट्यूबरस पार्ट को कट करना पड़ता है, सो आपका स्पाइन क्लियर नजर आता है, एंड देन यू कैन अप्रिशिएट ऑल दीज 3 स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो नर्व टू क्वाड्रेटस फीमोरिस है, ये दूसरी कौन सी मसल को सप्लाई करता है, सो इट सप्लाई द इंफीरियर गैमिलाई। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि नर्व टू ऑब्चुरेटर इंटर्नस किसको सप्लाई करता है, सो इट सप्लाई द सुपीरियर गैमिलाई। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम पर्पज, द सीक्वेंस, lateral most structure। so question क्या होगा, which is the lateral most structure coming out from the greater sciatic foramen or emerging from the greater sciatic foramen along the lower border of pyriformis। so lateral most structure कौन सा है, sciatic nerve। clear, और you may have the option कि sciatic nerve जो है वो सबसे लैटरली होती है या सबसे मीडियली होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्वेश्चन होगा कि कौन सा स्ट्रक्चर पायरिफॉर्मिस के नीचे से नहीं आता है, उसमें हो सकता है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल्स भी ऑप्शन में हो। तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और वेसल्स तो कहां से निकले हैं, अपर बॉर्डर से निकले हैं। ठीक है, सो इन दिस वे यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज 7 पॉइंट्स व्हेनेवर यू आर राइटिंग द शॉर्ट नोट। एंड लास्ट इज इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट, जो हम सबसे कॉमनली हमेशा देखते हैं, एंड दैट इज द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ठीक है, तो जब भी हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की बात करते हैं, द ग्लूटियल रीजन इज द मोस्ट कॉमन साइट। ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि हमें इंजेक्शन देना कहां पे। सो व्हेन यू विल सी दिस ग्लूटियल रीजन, आपको सबसे पहले पेशेंट का ये इलियक क्रेस्ट पाल्पेट करना है। नाउ व्हेन वी आर पाल्पेटिंग द इलियक क्रेस्ट, वी हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलियक क्रेस्ट। ठीक है, अब इस इलियक क्रेस्ट के हाईएस्ट पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, सो ये वर्टिकल लाइन इस पूरे ग्लूटियल रीजन को 2 हाफ में डिवाइड करता है। दिस इज द मीडियल हाफ ऑफ द ग्लूटियल रीजन एंड दिस इज द लैटरल हाफ ऑफ द ग्लूटियल रीजन। नाउ इस ग्लूटियल रीजन को हम 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एंड वील ड्रॉ 1 हॉरिजेंटल लाइन, एंड ये जो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट है, ये अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट is the safest site whenever we are administrating the intramuscular injection। हम हमेशा इंजेक्शन यहां लगाते हैं, क्यों? The answer is that we want to prevent the injury of the structures which we have read here। यहां पे हमने देखा बहुत सारे नर्व्स हैं, यहां पे हमने ये भी जाना कि कई बार शियाटिक नर्व में एबनॉर्मल एग्जिट होता है। तो अगर इसका सोचो हाई एग्जिट हो गया, ठीक है, और हमने यहां पे निडल प्रिक किया, हमने यहां पे इंजेक्शन दे दिया, देन द पेशेंट मे हैव द इंजरी ऑफ दीज नर्व फाइबर्स। सो आवर एम इज टू अवॉइड द इंजरी ऑफ न्यूरोवेस्कुलर बंडल which is lies deep to the gluteus maximus। so that's why we always choose this outer and upper quadrant to administer the intramuscular injections। clear? so at the end, whenever you are reading the gluteus maximus muscle, what are the important thing which you have to include in this short note? सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन।
But after that your question will not end, because you have to include the list of the structure which is deep to this gluteus maximus, and lastly is its clinical or applied importance. Clear? So this is all about the gluteus maximus and the structure deep to the muscle. Thank you.